The road to healing. آج کا ہمارا مضمون ہے شفا کا رستہ. کیا؟ اور یہ ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور حوالہ ہمارا دوسری سلاطین ہے اور اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا. خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. میرے پیچھے بولیے، وہ زبردست سورما بھی تھا. سارے بولیے، وہ زبردست سورما بھی تھا، لیکن کوڑی تھا. لیکن مل کے بولیے، لیکن کوڑی تھا. God's grace flow through humility and obedient. ہمارے جو مضمون ہے اس کا ٹائٹل ہے روڈ ٹو دا ہیلنگ، لیکن تھیم کیا ہے؟ مین تھیم ہے کہ خدا کے فضل سے اور حلیمی سے، خدا کے فضل سے. پہلا پوائنٹ ہے a great man with a great need. A great man with a great need. بڑا آدمی ہے، لکھا وہ معزز ہے، ریورنڈ ہے، عزت کے لائق ہے، سٹیٹس اس کا بڑا اعلیٰ ہے، کامیابی بھی ہے، طاقت بھی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ زبردست ہے لیکن کوڑی ہے. آج رات میں آپ کو بتانے آیا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، بڑے لوگ اچھے ہیں، بڑی زندگی بڑی خوبصورت ہے، چرچ سے پیار کرتے ہیں، پاسٹر سے پیار کرتے ہیں، خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، اور خدا کے خادموں سے بڑی محبت کرتے ہیں، دعاؤں کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن زندگی بڑی گناہ آلودہ ہے. یہ آدمی جو بڑا زبردست ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر کوڑ ہے، اور اس کوڑ کی وجہ سے اس کی زندگی عادی ہے. آج رات میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اگر گھر بڑا خوبصورت ہو، اگر بڑا ہی پیارا گھر ہو، لیکن اس کی بنیادیں اگر اس کے اندر کریک ہو، اگر آپ اس گھر کے اندر جانے سے ڈریں گے کیونکہ اس کی وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے. یہ آدمی ہے تو زبردست، یہ آدمی ہے تو بڑا اعلیٰ ہے، یہ آدمی ہے تو بڑا امیر ہے، یہ آدمی ہے تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر کوڑ ہے، اور کوڑ کی وجہ سے اس کو اپنا آپ چھپانا پڑتا ہے. کوڑ ایک ایسی بیماری تھی جس کو شوت کی بیماری کہتے ہیں. کوڑ ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کے اندر کوڑی کو اپنے بدن کو چھپانا پڑتا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کوڑ ہے، کیونکہ کوڑ کی بیماری ٹرانسفر ہوتی تھی. میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا عیب ہے جو اس کا زبردست پن ختم کر رہا ہے. آج رات بڑے لوگ ہیں جو بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر شاید لالچ ہے، شاید حسد ہے، شاید وہ دوسروں کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے، شاید وہ دوسروں کی چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. ساؤل کی زندگی، وہ بادشاہ تو ہے لیکن اس کے اندر جیلسی ہے، اور وہ داؤد سے جیلسی کرتا ہے، اور وہ داؤد کو مارنا چاہتا ہے وہ زبردست ہے، وہ بادشاہ، لیکن اس کی زندگی کے اندر جیلسی ہے. آج رات میں آپ کو لوگوں، خدا کے پیارے لوگوں، شانتی نگر کے لوگوں، ہو سکتا ہے آپ دیکھنے میں ایماندار ہیں لیکن اندر سے ایماندار نہیں ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر کوڑ ہے، اور اس کوڑ نے آپ کو پیرالائز کر دیا ہے. آج رات ایک ہستی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، وہی صرف کوڑیوں کو چنگا کر سکتا ہے. کوڑی لیپرسی
सिंबलाइज अ सिन, ये गुनाह की तस्वीर है। जबरदस्त होने के बावजूद भी इसकी जिंदगी के अंदर ये गुनाह की तस्वीर है। और नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, और कितने आप ताकतवर हैं, लेकिन गुनाह है आप कमजोर हैं, गुनाह है आपकी जिंदगी खोखली है, गुनाह है आप वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर परिंदे के साथ ईंट बांध दी जाए तो परिंदा कभी भी अपनी उस उड़ान को नहीं बढ़ सकता जिसके लिए खुदा ने उसको क्रिएट किया है, बनाया है। आज रात आप में से बहुत से लोग हैं, खुदा ने आपकी डेस्टिनी बड़ी खूबसूरत बनाई है, खुदा ने आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर बड़ा आला बनाया है, लेकिन आप हैं जबरदस्त, लेकिन आपके परों के साथ गुनाह की तस्वीर बांधी हुई है, जेलसी बांधी हुई है, आप हसरत से भरे हुए हैं, आप वो परवाज नहीं ले सकते जो आपको लेनी चाहिए। और आप सोच रहे हैं मेरी जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं हो रही, मैं तो जबरदस्त हूं। आपकी जिंदगी में गुनाह बांधा हुआ है। गुनाह इंसान की जिंदगी को पैरालाइज कर देता है। ये मैन ग्रेट है, इसका दर्द भी ग्रेट है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े वैल्यूएबल हैं, इस आदमी की तरह वैल्यू है, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई ऐब ऐसा है और उस ऐब ने वैल्यू को खत्म कर दिया है। हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसा कोई गुनाह है जिसकी वजह से आप वो उड़ान नहीं भर रहे जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। लेकिन आज रात एक ऐसी हस्ती है जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके सलीब से बहते लहू के अंदर इतनी ताकत है। उसने कहा एक थके और मांदे और बोझ के दबे हुए लोगों, उसने यूं कहा जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहेगी। यीशु के बारे में यह लिखा जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु के बारे में एक ही हस्ती है और वो यीशु मसीह है। ये कोड, कितने लोग हैं जिनको तरह तरह का कोड लगा हुआ है। खुदा का रूह मुझे कह रहा है जेलसी का रूह, कोई लोगों को जेलसी का कोड लगा हुआ है और वो फुलनेस खुदा ने जो बनाई। कई लोग पता क्या होते हैं, वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकते, वो कहते हैं हमारी तारीफ करो। उनको कोड लगा हुआ है और मैं आपको बताने आया हूं वो कभी वो उड़ान नहीं भर पाएंगे जिसके लिए खुदा ने उनको बनाया है। अपनी जिंदगी, ये कोड़ी आदमी, ये जबरदस्त होने के बावजूद भी कोड़ी है। क्या एक घर खूबसूरत हो तो क्या उसमें क्रैक्स आ सकते हैं? आज अब जब कोई क्रैक्स आ जाए, कितना मर्जी खूबसूरत कोई घर क्यों ना हो पास्टर मनीर, हर बंदा डरेगा कि क्या हो जाए, ये कभी भी गिर सकता है। और कितना मर्जी क्यों खूबसूरत क्यों ना हर बंदा डरेगा और इसलिए डरेगा कि ये गिर सकता है। हो सकता है आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आपके पास पैसा है, आपके पास डिग्री है, आप सोसाइटी में बड़े डिफरेंट लगते हैं। हो सकता है आपका कलर वाइट है, हो सकता है आप जुआन है, हो सकता है आप बड़े बहादुर हैं, लेकिन आज रात आपको वो चीज जो आपके अंदर है वो फुलनेस का तजर्बा करने नहीं देगी। आपको वो फुलनेस जिसमें आप उड़ना शुरू करें। और जब तक, सुनिएगा, जब तक मैं नीचे हूं मैं ऊपर की फिजा को नहीं देख सकता, मैं ऊपर की बुलंदी को नहीं देख सकता। जितने लोग जहाज में सफर करते हैं उनको पता, जब हम जहाज में बैठ जाते हैं तो हमें वो चीजें जो हम नीचे से देख रहे हैं वो चीजें हमें जहाज से छोटी छोटी नजर आना शुरू हो जाती है, जमीन पर वो चीजें हमें बड़ी नजर आती है। जब आपकी जिंदगी के अंदर से वो गुनाह का पत्थर हट गया, जब आपने उड़ना शुरू किया तो आप कहेंगे $10 मिलियन खुदा दे सकता है, ये छोटी रकम है, खुदा मुझे शिफा दे सकता है, ये छोटी बात है। क्योंकि
लिबास पर चीजें छोटी नजर आती हैं। आज रात मैं आपको बताने आया हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर से गुनाह निकाल दिया, खुदा आपके लिए सब कुछ मुमकिन कर देगा। आपके लिए आप ऊपर से देखना शुरू कर देंगे। You will see from the above. मैं अब नीचे से देख रहा हूं, मुझे सिर्फ शांति नगर के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं अगर ऊपर चला गया, मुझे खानेवाल छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा, मुझे मुल्तान भी छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा, मुझे मियां चन्नू भी छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा। खुदा ने आपके लिए जो डेस्टिनी बनाई है, गुनाह ने शायद आपको बांधा हुआ है, शायद आप जेलसी की स्पिरिट के अंदर बांधे हुए हैं, शायद आप जादूगरी की स्पिरिट के अंदर बांधे हुए हैं, शायद आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी स्पिरिट है, उसने आपको बांधा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी दफा हम बाइबल को पढ़ते हैं और लिखा है एक बदरू के बाइस वो कुबड़ी थी, लिखा है वो सीधी नहीं हो सकती थी, खुदा ने उसको सीधा पैदा किया था, लेकिन गुनाह ने उसको कुबड़ा कर दिया था, और गुनाह की वजह से वो नीचे ही देख रही थी। उसको वो इबादत खाना में तो थी, लेकिन इबादत खाने का मालिक उसके अंदर नहीं था। वो इबादत खाना में कई सालों से थी, वो ऊपर की बरकत को एंजॉय नहीं कर सकती थी, वो गुनाह के बाइस बदरू के बाइस कुबड़ी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन पादरी लेमुएल ऐसा हुआ, एक दिन पादरी मनीर ऐसा हुआ कि उस इबादत खाना के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कुबड़ों को सीधा करता है, इस औरत ने कभी भी आसमान नहीं देखा था। हो सकता है कि आपने वो बरकत नहीं देखी जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। आज रात ये कन्वेंशन सिर्फ गीत गाने का प्रोग्राम ना हो, आज रात यीशु को कह दीजिए मुझे छू ले, ताकि मेरा कुबड़ापन सीधा हो जाए, ताकि मैं आसमानी चीजों को देख सकूं। कुबड़ी थी, एक रूह के बाइस वो कुबड़ी थी, बदरू ने इसको कुबड़ा कर दिया था। जो कुबड़ा है वो नीचे देखता है। आज ये भी कुबड़ा है नमान, ये भी नीचे देख रहा है। खुदा की फुलनेस का तजर्बा, इधर देखिए, खुदा की फुलनेस का तजर्बा खुदा को जानने में है। खुदा की फुलनेस का तजर्बा खुदा से मुलाकात करने में है। बाइबल कॉलेज आपको डिग्री देगा, लेकिन दुआ में जो वक्त गुजारेगा उसको खुदा से ऐसा सर्टिफिकेट देगा जिसको कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी। ये बदरू के बाइस कुबड़ी है। वहां पर यीशु मसीह आ गया। मिलके बोलिए कौन आया? बोलिए कौन आया? यीशु मसीह ने देखा कि ये काफी सालों से कुबड़ी है, और वो तो इबादत खाने का भी हिस्सा थी, लेकिन कुबड़ी थी, इबादत करती थी। आज बड़े लोग इबादत करते हैं लेकिन अभी तक कुबड़े हैं, और ये कुबड़ापन आपको मैं बताने आया हूं, ये यीशु मसीह से मिलने से, उसको जानने से। मैं जिस यीशु मसीह को जानता हूं उसके नाम में कुदरत है, उसकी हुजूरी में तो कुदरत है ही। जो कोई उसका नाम लेगा वो भी नजात पाएगा। उसके नाम के अंदर कुदरत है, और कलामे खुदा में लिखा है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। आज रात में आपको बताने आया हूं मेरे अजीजों, हो सकता है आप बातें कर करके, अटेंड कर
के आप थक चुके हैं, हो सकता है बसों पर झूले ले लेके आप थक चुके हैं, हो सकता है आप बसों पर जा जाकर कभी लेट हो गए हैं, आपको ये बताया गया है बस इबादत पे जाना है, वहां पर जाकर वहां पर बैठ जाना है, और जब मैं आवाज दूंगा तुमने वापस बाहर आ जाना है, फिर बस में बैठ जाना है। मैं आज आपको बताऊं, अगर आप बस पर बैठेंगे आप बीमारी खाली रहेंगे। अगर आपने यीशु मसीह को बस पर बैठकर वहां पर जाकर यीशु से मुलाकात कर ली, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी के अंदर कुबड़ा बन जाता रहेगा। हो सकता है मसीह है लेकिन है गुनाहगार, ये जबरदस्त है, लेकिन है खोड़ी, ये जबरदस्त है, लेकिन है यानी इब्लीस के कब्जा में। और वहां पर आपको यीशु से मिलना है, और यीशु से आपको कोई पादरी नहीं मिला सकता। कौन मिलाएगा? लिखा जितनों ने उसको कबूल किया उनको हक बख्शा गया कि वो खुदा के क्या कहलाएं, क्या कहलाएं, क्या कहलाएं। आप 12 केले लाएं, अपनी फ्रीजर में रख लें, बेटे को इजाजत है, पूछेगा आपको मैंने बाबा केले खाने, क्या वो क्या है, वो क्या है? फर्जंद है, बेटा है। जो कबूल कर लेते हैं शिफा उनको मुफ्त में मिलती है, उनको पूछना नहीं पड़ता। उनके लिए खुदा फ्रीजर खोल देता है, और उस फ्रीजर में क्या क्या पड़ा, खाली शिफा नहीं, उसमें दौलत भी पड़ी हुई है, उसमें वीजे भी पड़े हुए हैं, उसमें अरबों रुपए भी हुए हैं, उसके अंदर हर चीज पड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे यीशु को जानता हूं जिसको लोगों ने कबूल किया और फिर वो लोग गरीब नहीं रहे। मैं जिस यीशु को जानता हूं उसको लोगों ने जिन्होंने उसको दिल से कबूल किया, मैंने उनको गरीब नहीं देखा। और दाऊद भी कहता है मैं जवान था बूढ़ा हो गया, रास्तबाज के बच्चों को टुकड़े हुए मांगते हुए नहीं देखा। और याद रखिए, गौर से सुनिए इस बात को, दाऊद कहता है कि जंगल में शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है लेकिन मेरा तालिब हरगिज भूखा ना रहेगा। आपको शाफी की जरूरत है, जिस तरह इस औरत को शाफी की जरूरत, ये कुबड़ी तो है लेकिन इसको जब यीशु ने छुआ है और कलाम खुदा कहता है ये बिल्कुल सीधी हो गई। हो सकता है आप कुबड़े हुए हैं, कर्जे ने आपको कुबड़ा कर दिया है, आपको चुगलियों ने कुबड़ा कर दिया है, आप अपनी ननान की चुगलियां कर रही हैं, अपनी भाभी की चुगलियां कर रही हैं, आप पास्टर्स की चुगलियां कर रही हैं और आप कुबड़े हो गए हैं। आज रात आपको यीशु मसीह के हाथ की जरूरत है। अगर उसने हाथ रख दिया आप हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। वहां पर सुनिए, वहां पर एक बच्ची है, उसने कहीं देख लिया, किसको भला? नमान को। नमान को उसने देखा, उसने कहा काश कि मेरा आका, काश कि मेरा आका, बोलिए बड़ा, काश कि मेरा आका, बोलिए काश कि मेरा आका। आप उठो बेटा, उठिए, उठो बच्चा, उठो उठो। ये बच्ची जो ग्रेट है कोड़ी। इस बच्ची ने इस कोड़ी को देख लिया। ये बच्ची गुलाम है, वहां पर ये बादशाह की सफाई करती है, ये बादशाह के घर की सफाई किया करती। इसका मुंह छोटा है लेकिन इसके मुंह में जो कलाम है, मैं आपको बताने आया हूं, कलाम खादम के मुंह में है तो जोरावर है, कलाम बच्चे के मुंह में है जोरावर है, कलाम फरिश्ते के मुंह में है जोरावर है, कलाम गधे के मुंह में है कलाम जोरावर है, कलाम लौंडी के मुंह में है कलाम जोरावर है, कलाम में खुद पाई जाती है, कलाम के अंदर पावर है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। बेटा इधर आओ, जल्दी से
शर्माना नहीं, आप आ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आप बैठो बैठो बैठो। उसने कहा काश कि मेरा आका, मिलके बोलिए काश कि मेरा आका। आवाज शांति नगर तुसी ते एडे पुराने मसीह जो हाले भी आवाज थल्ले थल्ले उच्ची करके करो। 110 साल तो भी पुराने मसीह ते आवाज नीवी और भाई उच्ची बोलो काश के मेरा आका। तो हालेलुया भी छोटा लो, चंगी गल है यार। इथों दे हालेलुया ते मुल्तान तक पहुंचना चाहिए क्योंकि कलीसिया पुरानी है। मैं आपको सच्ची बताऊं, परसों रात मैं गुजरांवाला में कन्वेंशन पढ़ा रहा था। मैंने अपनी लाइफ में, हकीकत कहूंगा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कलीसिया नहीं देखी। भाई उनको कहना पड़ता था तालियां बंद कर दो। सच कह रहा हूं, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं हैरान हो गया। उनको कहना पड़ता था दुआ बंद करो। पादरी मनीर उनके अंदर ऐसे जैसे इंजन लगा हुआ है, हालेलुया का, तालियों का, दुआ का। और भाई मैंने भी फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने भी उन्हें सराया। और भाई तक्का स्टार्ट ना बनो, बार बार उठ चुको हाथ को दवा चुक दवा को पादरी साहब हो नहीं थल्ले आन दे, भला जो मर्जी हो जाए, और हालेलुया भी थल्ले नहीं आएगा। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं ऐसी कलीसिया देखी, सच कह रहा हूं। पाकिस्तान में, मैं पूरी दुनिया में गया हूं लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कलीसिया मैंने नहीं देखी। उस कन्वेंशन पर मैं हैरान हो गया, मैनू जोर ही नहीं लाना पै रहा। सुने, उसने कहा काश के मेरा आका, मिलके बोलिए काश के मेरा आका उस नबी के यहां होता तो ये ऐसा ना होता। मिलके बोलिए काश के मेरा आका उस नबी के यहां होता तो ऐसा ना होता। ये उसने उस बड़े बंदे ने, ये बच्ची छोटी है लेकिन इसके मुंह में कलाम छोटा नहीं है। आप गरीब है ना, आपका जो बिजनेसमैन अरबपति है ना, उसको कलाम बोले वो भी छोटा हो जाएगा आपके सामने। अरबपति, मैं करोड़पति की बात नहीं कर रहा, मैं अरबपति लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास पराडो है, मर्सिडीज है। आप उनसे कलाम बोले वो आपके ताबिया हो जाएंगे। कलाम याद रखिए हमेशा बड़ा रहता है, आदमी हमेशा छोटा रहता है। ये बच्ची के मुंह में, इसका मुंह छोटा है लेकिन इसके मुंह में जो कलाम है वो बड़ा है। कभी बैठ जाए बेटा, कभी आप में से कितने लोगों ने जब भी फील किया मैं तो कमजोर, मेरा खुदा भी लगता कमजोर ही है। आपको कुव्वत की जरूरत है। सुनिए 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 सुनिए, स्मॉल वॉइस विद द बिग मैसेज। छोटी आवाज बड़ा पैगाम। मिलके बोलिए छोटी आवाज, ऊंची बोलिए छोटी आवाज, छोटी आवाज बड़ा पैगाम, छोटी आवाज बड़ा पैगाम। बड़ा आदमी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी बच्ची बड़ा कलाम। छोटी बच्ची, काश के मेरी कौम के बच्चे टैटू ना बनाए। लाहौर में बड़ा ट्रेंड है, किसी ने मुंह दे इत्थे बनाया जो टैटू, किसी ने कक्के वाल, बुरे वाल, सलंसर ही टुटे जो, यकीन जानो मोटरसाइकिल दे को पीती, कई ने पी पी के रंग बिरंगे वाल, किसी दे लाल ही, किसी दे काले, किसी दे ऑरेंज वाल ही। किसी ने इत्थे टैटू बनाया है, किसी ने इत्थे बनाया है, किसी ने इत्थे बनाया है। मैं आपको अपने शहर की बात बता रहा हूं। और पी के गिरे हुए हैं। और हुआ क्या है, उनका मुंह बड़ा है लेकिन उनकी गवाही छोटी है। ये बच्ची छोटी है लेकिन इसकी गवाही क्या है? मिलके बोलिए, बोलिए ना जरा, इसकी गवाही क्या है? मिलके बोलिए क्या है? ये बच्ची छोटी है लेकिन इसकी गवाही बड़ी है। हो सकता है
کئی دفعہ خادم بڑا ہے، مسا چھوٹا ہے. بڑی دفعہ خادم اپنے آپ کو وہ بڑا کہتا ہے لیکن مسا چھوٹا ہے. کئی دفعہ خادم بے نام ہے لیکن مسا بڑا ہے، اور وہ جہاں پر کھڑا ہوتا ہے خدا موو کرتا ہے. آمین. یہ بچی چھوٹی ہے لیکن اس کے منہ میں جو کلام ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. ہم میں سے کسی نے رات کے وقت، ہم میں سے کسی نے اپنے کمرہ جو اندھیرا ہے، ہم میں سے کسی نے کبھی رات کے وقت اندھیرے کمرے کے اندر چھوٹی سی موم بتی جلائی ہو؟ کسی نے ہاتھ کھڑا کرے. ہم میں سے سب نے جلائی ہوگی. وہ چھوٹی ہے لیکن اس کے باعث کمرہ روشن ہو گیا ہے. روشنی یاد رکھیے چھوٹی ہے لیکن اس نے کمرے کو روشن کر دیا ہے. کبھی اپنی گواہی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میں تے چھوٹا جہاں ہے اور میرے ذریعے کتنے خدا نے کام کرنا ہے. بدروؤں کن کے ذریعے نکلیں گی؟ پادریوں کے ذریعے. لیکن جو ایمان لائے گا ان کے درمیان، مل کے بولیے جو، اونچی بولو ذرا، جو ان کے درمیان معجزے ہوں گے. کن کے درمیان؟ ہاں کون؟ اچھا ایمان. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. کئی لوگ کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ مجھے شفا نہیں ہوتی. تیرا ایمان ہو سکتا ہے غلط جگہ پر ہے، جگہ رونگ ہے. جو ایمان لائے گا وہ معجزے دیکھے گا. یہ بچی جان چکی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بے دل ہو چکے ہیں. میں چنگا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی نہیں ٹھیک ہو سکتی، میرا بیٹا نہیں ٹھیک ہو سکتا، میں کبھی بھی باہر نہیں جا سکتا، میں ناکام ہوں، میرا ویزا نہیں لگ سکتا. بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چل سکتا اور ہم ناکام ہیں. آج رات شانتی نگر کے پیارے لوگوں، آپ شاید اپنے آپ کو خود چھوٹا کر رہے ہیں. آپ کے منہ میں جو کلام ہے وہ بہت بڑا کلام ہے. اس کو بولنا شروع کریں. Don't underestimate your testimony. Don't ابھی کبھی غلط نہ بولے. ایک دفعہ ایک بندہ نا پادری لیمویل ہویا کی بیڈ تے چلا گیا ہاسپٹل دے. پادری نے انہوں نے فون کیتے، انہوں نے کہا پادری صاحب ہے بندہ. پادری صاحب وہاں پر گیا، اس نے کہا یسوع کے نام میں ٹھیک ہو جا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. خدا نے اس کو بولا اس نے ٹھیک نہیں ہونا. اس نے کہا خداوند کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے بلایا ہے. خداوند نے اس کو کہا یہ بندہ ساری زندگی یہ کہتا رہا میں مر جاؤں. آپ جو بولیں گے وہ کریٹ ہوگا. یہ بچی یہ کلام بول رہی ہے، یہ اگر وہاں چلا گیا ایسا نہ رہے گا. ہم میں سے کتنے لوگ فیل ہو گئے ہیں دعائیں کروا کے. بڑی دفعہ آپ اپنی بیماری سے یسوع نے سانو انجدہ رکھنا ہے، یہ تیرا سوچ بن گیا ہے. خداوند تو قبروں کے اندر سے مردے زندہ کر سکتا ہے. تو پھر باہر ہے، تیرے دے اندر تو سانس ہے، وہ تو ان کو زندہ کر سکتا ہے جو قبروں کے اندر ہیں. سنیے ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا سا جلدی سے ہم سٹوری کو وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کے جائیں گے. مل کے بولیے تو کبر جو ہے نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بادشاہ کو بھی کہا، اس نے خط لکھا. اس کا بادشاہ رونے پڑ گیا. کس کا بادشاہ بلا؟ الیشا کا بادشاہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میں شافی ہیں، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پر مرتے خدا موجود ہے. بڑی دفعہ گورنمنٹ آپ کو ریگونائز نہیں کرتی، لیکن آپ موجود ہوتے ہیں جو قوم کو شفا دے سکتے ہیں. اور اس نے کپڑے پھاڑ لیے، لیکن وہاں پر مرد خدا تھا جس کا نام الیشا تھا. کیا نام تھا؟ الیشا تھا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سونا لیا، چاندی چندی لئی تے اینے کی کیتا بیگ تیار کیتا ایک. تے ایندا خیال پتہ کی سی؟ ادھر دیکھو،
ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਸੀ کہ نبی آئے گا تو ہاتھ کی کرے گا مینوں. ہاں کئی لوگوں کا ایمان پتہ کیا ہوتا ہے, پانی تے تیل تے پادری دا ہاتھ رہیچا تے پھر شفا ہوئے گی, ورنہ نہیں ہوئے گی. ایسے ہی ہے نا. کئی دفعہ پادری بیچارہ سٹیج پہ دعا کر کر کے تھک جاتا ہے, جب وہ نیچے آتا پسینے تے لوگ سر جی دعا تے کر دو, تے بندہ پوچھے اتنے کھیل رہا سی, اتنے دعا ہی تے کر رہا سی. کیا کر رہا تھا وہ؟ ہاں کلام میں وہ کلام سنا رہا, موعظے ہو رہے ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف. اس نے جب بیگ تیار کیا تو وہ نبی کے پاس آیا, اور اس کا ذہن یہ تھا کہ نبی مجھے ہاتھ لگائے گا, بٹھائے گا. نبی نے اس کو کہا جا کر تو کیا کر بھلا, دریائے یردن میں کیا کر, گوتے لے لے. اس کو تو بھائی غصہ آ گیا. اس نے کہا بھائی اگر گوتے لینے ہو تو بھائی میرے ملک میں دریا نہیں ہے. اگر میں نے گوتے ہی لینے ہیں تو کیا میرے ملک میں دریا نہیں ہے؟ تیرے ملک میں پانی ضرور ہے لیکن تیرے ملک میں نبی نہیں ہے. تیرے ملک کے اندر پانی ضرور ہے, تیرے ملک میں دریا ہے, لیکن ان دریاؤں کے اوپر بولا نہیں گیا. وہ نبی بولے گا اس دریا پر تو معجزے ہوں گے. بڑی دفعہ لوگ اپنی چیزوں کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کی چیزوں سے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں خدا کی چیزوں سے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں. خدا کی چیزیں بابرکت چیزیں ہیں, انسان کی چیزیں کبھی بھی اتنی بابرکت نہیں. وہ کہہ رہا میرے ملک چی دریا ہے. اس کے اندر کیا تھا بھلا؟ تکبر. بڑا آدمی اسے رکھے گا, پھر آئی فون لے گا, پھر لوکاں نوں کھائے گا میں امیر ہو گیا. بھائی مینوں تسی غریب نہ سمجھنا. سنیے, دولت کو عام بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا. 99% لوگوں کو دولت کنٹرول کرتی ہے. دنیا میں صرف 1% لوگ ہیں جو دولت کو کنٹرول کرتے ہیں. دولت کو ہر بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا. میں سچ کہہ رہا ہوں. کئیاں تو پائی زمین تو چوک کے سمان تے بہا دے تے پھر جدو سمان تو سڑ دی تے تھلے نہیں سڑ دی, پھر کتے سڑ دی ہے؟ قبر چی سڑ دی. بھائی تو تے نہیں نظر آئے گا. ہوں یہاں سے اٹھاتی ہے تو کدھر بٹھاتی بلے؟ ہاں کدھر بولو نا. تو جب وہ نیچے گراتی تو کدھر گراتی ہے؟ ادھر نہیں گراتی. وہ تھلے بندیاں نو کہندی ہے تو قبر کھود کے راگ تو جو میں سٹاں گے ڈائریکٹ ہی آپ تھلے سٹاں گے, جیندہ آپ حق نہیں دینا. جب اوپر سے پھینکتی ہے تو پھر نیچے قبر تیار کرتی ہے وہ, اور پھر اسی قبر میں ڈالتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, تسی کوئی چیز لے لو نا, کار پلاٹ لے لو, گڈی لے لو, منڈا امریکہ چل جائے تو اے نہ کہو اوے بیکھو سانو, بلکہ کہو خداوند کا شکر ہے خدا نے کیا ہے. یہ ہمیشہ اس کے نام کو جلال دو. پیسہ ہاتھ لگ جائے نا تو پیسے نو خدا نہ بنا لو. داؤد نے کیا کہا تھا, تیرے دیے میں سے دیتے ہم کون سا بھائی کیا کر رہے ہیں, میں ادھر کیا فخر کر رہا ہوں. آپ کے پادری صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ, اور بھائی میرا کیا, یہ تو مجھے اس نے دی ہے, میں سنا رہا ہوں. مجھے نہ دیتا میں بھی ادھر بیٹھا ہوتا یا لاہور شہر میں بیٹھا ہوتا. یہ آواز اس کی ہے, یہ چیزیں اس کی ہیں. میں ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے شافی سے اوپر نہیں کروں گا. میرا شافی ہمیشہ اوپر رہے گا, میرا نجات دہندہ ہمیشہ اوپر رہے گا, میری چیزیں نیچے رہیں گی. پوائنٹ سنا لیے کہ بس کریے, ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی. سنائیے سارے, چکو ہاں بلات بھائی سارے کہندے واہ پورے ہو جان, پوائنٹ ہو جان جی. سنیے, جب وہ آیا اس کا ذہن کیا تھا کہ مجھ پر, ادھر دیکھو, بڑی دفعہ پیسہ ہونا تو ہم خدا کو بھی خریدنا چاہتے ہیں, اور ہم کہتے خدا ہماری طرح کام کرے. سنیے تکبر کیا کہتا ہے, ادھر دیکھو,
सुनो, 2 जुमले में बोलने लगा हूं। तकब्बर कहता है कि खुदा मेरे तरीके से काम करे। ईमान कहता है कि खुदा अपने तरीके से काम करेगा। एलीशा के अंदर ईमान है और वो खुदा को अलाउ कर रहा है कि खुदा इसको छुए। नमान के अंदर तकब्बर है और वो चाहता खुदा मेरी तरह मूव करे। आपकी दौलत के मुताबिक खुदा मूव नहीं करेगा, आपके पैसे के मुताबिक खुदा मूव नहीं करेगा। आप चर्च में बड़ा पैसा देते हैं, आप खुदा को खरीद नहीं सकते। आप चर्च आपने बना दिया है, 50 लाख रुपया लगा दिया है, आप खुदा को खरीद नहीं सकते। हमेशा हमें हलीम रहना पड़ेगा, हमेशा हमें आजिज रहना पड़ेगा। नमान की प्रॉब्लम क्या है? ये जबरदस्त होकर भी क्या है, तकब्बर के अंदर है। लोग आज अमीर होकर भी कोड़ी है, अमीर होकर भी तकब्बर में है। और मैं आपको बताऊं, तकब्बर खुदा की बादशाही को रोकता है आपकी जिंदगी के अंदर। आपके मोजे क्यों रुके हुए हैं? शायद ਤੁਹਾਡਾ रंग चिट्टा ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ रंग बड़ा चिट्टा, ये कि मेरे अगे सोने नहीं लगते। आपके तकब्बर ने शायद आपको बांधा है। फ्लो क्यों नहीं आ रहा? आप वो चीजें नहीं देख रहे जो खुदा। आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? मुकाशवा की किताब पढ़ी है? किसने पढ़ी है? यूहन्ना आरफ को खुदावंद क्या कहता है? इधर ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊं। किधर आ जा? हाँ, किधर आ जा? तो ऊपर कैसे जाएगा? पहले पर आजाद होंगे तो ऊपर जाएंगे ना। आप वो चीजें नहीं देख सकते जब तक आपके पर बांधे हुए हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते। लिखा हुआ बाइबल में, यहां ऊपर आ जा, तुझे मैं वो चीजें बताऊं जो इन चीजों के बाद होने वाली। ऊपर आप क्यों नहीं जा रहे? आपके साथ कोई गुनाह बांधा हुआ है और खुदा आपको उठाना चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं? गिर जाते हैं और आप वो चीजें नहीं देख रहे जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। अब सुनिए, obedient bring the miracle। मिलके बोलिए, ताबेदारी मौजा लाती है। ऊंची बोलिए जरा, कौन मौजा लाती है? ताबेदारी क्या लाती है? ये गुस्से में जा रहा है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना पता की है, कोई सियाना ਜਾਂ पादरी भी है बेचारा, वो कहता यार तेन गोते लाउणगे की हुंदा है। मुबारक है वो लोग जिनके सलाहकार जबरदस्त हैं, मुबारक वे लोग जिनके दोस्त जबरदस्त हैं, मुबारक वे लोग। आपको भाई खुदा देगा, मुशीर आपने खुद चुनना है। और उसने कहा भाई नबी तुझे क्या कहता, कोई काम कहता मुश्किल तो तू वो ना करता, चल आजा गोते ला। क्या कर? गोते लगा। तकब्बर शिफा में रुकावट है, अमन फर्मा बरदारी मोज़े लाती है। किसी ने इसको कहा कि तेरे लिए शिफा है। जब नमान ने अपने आप को हलीम किया, खुदा के दरवाजे उसके लिए खुलना शुरू हो गए। इन्हें एक गोता लाया, ये उंजदा ही है। इसने दूसरा गोता पादरी लेम में लगाया, ये फिर भी इसको शिफा नहीं मिली। वो बंदे ने तको तकी लवाए होंगे, लाला होर की हो गए तेनू, 5 होर लाला। नबी ने किन्ने क्या है तो पता की कहता होगा, 5 मैं अपने दरिया च जाके ला लांगा भाई। ये अपने दरिया को तो नहीं छोड़ता होगा। फिर इसने 3 लगाए होंगे तो कहता होगा मैं 4 जाकर उधर लगा लूंगा। बात करने की नहीं, बात ताबेदारी की है। और जब इसने 5 गोते लगाए तो ये अभी कोड़ी है। जब इसने 6ठा गोता लगाया, ये कोड़ी है। लेकिन जब इसने 7वां गोता लगाया, जो चीज इसकी जिंदगी के ऊपर थी वो चीज नीचे गिर गई। खुदा
आपकी जिंदगी के अंदर से वो बोझ जो उन्होंने आपको बांधा हुआ है नीचे गिरा देगा और आप आजाद हो जाएंगे। खुदावंद आपको आजाद कर देगा। इसने बांधा हुआ है वो बोझ कोढ़ का, और उस कोढ़ की वजह से क्या हुआ है, इसने बांधा हुआ है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज कोढ़ बांधा हुआ है काफी सालों से। और याद रखिए, आप जब कोढ़ी रहे आप कभी भी खुदा की बरकत को नहीं देख सकते। मिल के बोलिए शिफा की तरफ, ऊंची बोले शिफा की तरफ जो रास्ता है वो ताबेदारी का है। किसका है? जब हम आपको कहने वाले हैं कि अपना दिल यीशु को दे दें, अगर आपने आज रात अपना दिल यीशु को दे दिया, मैं आपको बताऊं खुदावंद ने उसको कोड़ी नहीं रहने दिया। खुदावंद आपको गुनाहगार नहीं रहने देगा। खुदावंद आपको पहले जैसा नहीं रहने देगा। खुदावंद आपको बदल देगा। यीशु मसीह जिससे मिलता उसकी लाइफ बदल जाती। मैं आपको बताने आया हूं, यीशु जिससे भी मिलता है उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? बदल जाती है। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर यीशु की जरूरत है और आपको यीशु मसीह बदल देगा, बदल देगा, बदल देगा। आप वो बीमारी, मैंने कोट कितनी देर से पहना हुआ था और उस कोट के स्वाब से मुझे पसीना आ गया। हो सकता है गुनाह के स्वाब से आपकी जिंदगी में बीमारियां आ गई हैं, और अगर आज रात आपने गुनाह को फेंक दिया, आप कोड़ी नहीं रहेंगे, आप गुनाहगार नहीं रहेंगे। और जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ ही मिल गया। आज रात शिफा का और निजात का रास्ता खुला हुआ है। और नमान कोड़ी, इधर देखिए, नमान कोड़ से ठीक हो गया, लेकिन वहां पर एक और मौजज़ा हुआ पास्टर जी। वहां पर क्या यहाँ पर दो तरह के दिल हैं। एक दिल ऐसा है जिसके अंदर लालच है और वो सोच रहा है बड़ी चीजें आई हैं और मैं जाकर हासिल कर लूं ये चीजें जो मुझे वो लाया है मेरे उस्ताद के लिए। और हुआ क्या है कि जहाजी जाकर उसका पीछा कर रहा है और कह रहा मुझे कपड़े दो, मुझे सोना दो, मुझे चांदी दो। और याद रखिए और से सुनिए, उसका उस्ताद कह रहा तू कहां पर था? उसने कहा उस्ताद यहां पर ही था और मैं तो यहां पर ही था। याद रखिए, गौर से सुनिए, नमान अपना गुनाह इजराइल में छोड़ के चला गया और वो नाफरमान आदमी ने वो गुनाह उठा लिया अपनी नस्लों के लिए। आज रात गुनाह ना उठाइए बल्कि उसको जाने दीजिए। जब आप जाने देंगे खुदा